السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الطاهرين۔ پروردگارا بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل فرما، ولی الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم تمام عزاداروں کا، ان ماتمیوں کا جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، پروردگارہ بارگاہ صاحب الزمان میں یہ پرسہ قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء کا ہمیں اس محرم کے عظیم عزاداروں میں سے شمار فرما۔ ہم تمام کو شہداء کربلا پر زیادہ سے زیادہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ رحمت اشک غم حسین ہمارے دامن کو پر فرما۔ پاک اللہ میرے صاحب الزمان کو ہم پر راضی فرما، ہمیں اپنے مولا کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں سید الشہداء کے ساتھ مشہور فرما۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، مجھے مومنین نے بہت دعائیں فون کے ذریعے سے مل کر، میسیجز کے ذریعے سے، تو ویسے اجتماعی دعا تو میں کرتا ہی رہتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے، تو آج پھر ابتدائی مجلس میں دعا کر رہا ہوں۔ پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں سب کی سب حاجات پوری فرما۔ بانیان عشرہ مجالس کو خلوص مزید عطا فرما، ان کی سعی اور کوشش کو منظور فرما۔ جتنے مومنین جس انداز میں مولا کی عزاداری منا رہے ہیں، قدم قدم پہ بطول کی دعا نصیب فرما۔ پاک اللہ جو مریض ہیں شفائے کاملائے عاجل عطا فرما، خصوصاً جو لا علاج ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، پروردگارہ تجھے باب الحوائج مولا راضی کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے محترم محمد حسن جعفری کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، آج کی مجلس کا صدقہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین مومنین مومنات میں جو مریض ہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔
جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو اولاد کے غم سے محفوظ فرما۔ پاک اللہ تندرست مومنین کی تندرستی دور فرما، مقروض مومنین کے قرضے ادا فرما، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما۔ سب سے اہم دعا، پروردگارہ غم حسین میں روتے ہوئے موت دینا، ہمیں نور ولایت پہ موت دینا، مولا کی زیارت کر کے موت دینا، ہمیں مولا کے دیدار کرتے ہوئے ان کے قدموں میں شہادت دینا۔ پاک اللہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا۔ موت سے پہلے اسی سال جتنے حاضر مومنین مومنات خلوص سے تشریف فرما ہیں سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، مولا غازی کی زیارت نصیب فرما، سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، ان کی محسنہ بی بی عالیہ بنت علی کی شام میں زیارت نصیب فرما، بنت الحسین 4 سال کی شہیدہ بی بی کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ بہت اہم دعا، پروردگارہ وارث دوران، حجت دوران، منتقم مظلومین ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج سے محشور فرما۔ جہاں جہاں پر بھی شریف خون رکھنے والے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزادار مولا حسین کا ذکر منا رہے ہیں، ان کی عزت مال ناموس کی حفاظت فرما، اور جو مومنین کے لیے انتظامیہ غیر انتظامیہ معاونت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر شر شیطان، شر دشمن اہل بیت کو مومنین سے دور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے توجہ سے بلند صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراوا بمقدمه الفداء، ولعنة الله على الأعداء،
من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات. آج ایک شب جمعہ ہے اور 7 باب الحوائج کا علم برآمد ہونا ہے. مولا کے نزدیک ہونے کے لیے ذرا توجہ سے مل کر بلند صلوات پڑھیں. بندہ ناچیز کی ممبر کی زندگی کا اصول ہے کہ عشرہ محرم میں یا عام دنوں میں شب جمعہ آ جائے تو مجلس نام ہوتی ہے اپنے سانسوں کے مالک امام صاحب الزمان کے ساتھ. چہرے شاداب ہوئے ہیں مولا کا نام سن کر. پتہ ہے وہ مولا ہے کون؟ یہ اس کے نام کرتا ہوں. یہ قانون بنایا ہوا ہے کیونکہ کم اس طرح زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے صاحب الزمان پہ بولنا چاہیے کیونکہ اسی کی ہی تو معرفت واجب ہے. اب آپ کی معرفت کا امتحانی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. بالکل پہلے ہی منٹ میں اس کی معرفت واجب ہے. کیوں؟ اگر اس کی معرفت ہوگی تو اللہ کی توحید کا ایمان باقی رہے گا. نہیں اس طرح ماشاءاللہ نہیں میرے بھائی فرنٹ سیٹ والوں. نہیں بڑے بڑے اس جوش میں آؤ گے نا پھر سلمان مزاج ابو ذر طبیعت بنو گے تو کچھ سنو گے. بھائی میرا امام صاحب العصر والزمان وہ امام ہے اللہ فرماتا ہے جسے اس میرے بنائے ہوئے کا عرفان ہوگا اپنی لا الہ الا اللہ قبول کروں گا. جو اس کو نہیں مانتا لاکھ توحید کی رٹ لگاتا رہے قیامت والے دن مشرک اٹھاؤں گا. یار علم سننے آئے ہو, ولایت سننے آئے ہو, معرفت لینے کے لیے آئے ہو, اس امام کا ذکر کر رہا ہوں. اب توجہ, مولا کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس کے صدقے میں لے جانا. اس مولا کا ذکر کر رہا ہوں جو سانس لیتا ہے تو زندگی کو سانس ملتا. علی بھائی ذرا سر اٹھا کے آج میرے مزاج مطابق مجھے سن, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کون امام جو سانس لے تو زندگی کو سانس آتی ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے. جس کے پاک خون کی چلن کی وجہ سے حیات میں حیات رواں دواں نظر آتی ہے. بیٹے مجھے دیکھو, ادھر ادھر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے. انتہائی توجہ, اس مولا کا ذکر کر رہا ہوں. فرض کرے 1 سیکنڈ کے لیے اس کی نبض رک جائے زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی ختم ہو جائے گی. بھائی توجہ ہے, مولا کا عرفان دے رہا ہوں. یہ وہ میرا عظیم مولا ہے. زیارت جمعہ, کل جمعہ کا دن ہے. میں اس بچے سے لے کر جوان سے لے کر ہر ایک کو دے رہا ہوں. ہدیہ لے جاؤ کل مفاتیح الجنان کو اٹھاؤ. ابتدائی پہلے 40-50 صفحوں میں آپ دیکھیں گے جمعہ والے دن میرے صاحب الزمان کی زیارت ہے. پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے جمعہ والے دن جو مولا کی زیارت صبح سویرے نماز کے بعد پڑھے گا, ویسے تو پوری زندگی مولا کے ہاتھ سے ہی کھا رہا ہے, لیکن جب زیارت پڑھے گا تو اس دن مولا کے دسترخوان کا خاص مہمان بن جائے گا. یہ درمیان والوں آخر والوں تمہارے اوپر بھی لازم ہے ہاتھ اٹھانا. ہاں آواز بھی آئے, آج سو جائے گی. میں نہیں سنوں گا, میرا مولا تو سنتا ہے. غور ہی نہیں فرما رہے تھے میری بات پر. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی, میری مولا تک تو پہنچی رہی ہے. وہ مولا اس زیارت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. السلام علیکہ یا عین الحیات. مجھے دیکھنا, فرماتا ہم عرض کر
कर रहे हैं, मौला ऐ हुज्जत खुदा मेरा सलाम, ऐ साहिब गैबत इलाहिया मेरा सलाम, ऐ उस पर सलाम जिसकी इताअत पूरी मखलूक पर वाजिब है। जुमला सुनिए जिसके लिए मैंने पढ़ा है। अर्ज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, मेरा सलाम हो ओ जिंदगी का चश्मा मौला। बच्चों मुझे बताओ चश्मा किसे कहते हो? जहां से पानी फूटे। ओ यार अपने वक्त के इमाम को पहचानो, इससे फकत पानी ही नहीं, इसके वजूद से जिंदगी फूट रही है। इसके वजूद से आप कल से ना बुजुर्गो यहां बैठा करो मेरे साथ, यहां तशरीफ लाया करें, यहां बैठा करें। दूर बैठते हैं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आती, आप नारा लगाते हैं रह जाते हैं। यहां बैठा करें, कल से कुर्सी यहां लगा, यहां तशरीफ फरमा हुआ करें। इंतहाई तवज्जो, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपकी खिदमत आलिया में। कौन मौला? जो जिंदगी का चश्मा है, ओए होए 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 होए, जो जिंदगी का चश्मा है। ये मार्फत का ज़ीना दे रहा हूं यहाँ इस जवान से लेकर आखिर तक। जो खड़े हुए हो, जो बाहर खड़े हो, तुम्हारे लिए ये जुमला कह रहा हूं, दावत दे रहा हूं। उस नूरी दस्तरखान इमाम बारगाह में तशरीफ ले आओ जहां फरिश्ते भी एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर बैठना चाहते हैं। काम काम काम, वह भी इस दौर में भी काम, जहां पे अल्लाह अपनी रहमत और नूर बांट रहा है। तुम दुनिया के पीछे भागे हुए आओ। इस टाइम तो सुनो, ये खर्च हो रहा है कुछ लेने के लिए, आपके लिए इंतहाई तवज्जो कुछ कहना चाहता हूं। तो आओ, तुम्हें भी दावत दे दी है मैंने, हुज्जत तमाम हो गई। बैठो, सुनो, उस इमाम का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, जो चश्मा हयात है, यार जरा सोचो तो सही, पानी उबल रहा हो तो सारे कहते हो यहाँ पर जिंदगी है। यानी जहाँ पे पानी हो ना, ऐसा है ना, जहाँ पे पानी हो लोग कहते हैं यहाँ पर जिंदगी है, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी चल नहीं सकती। और जहाँ पर खुद जिंदगी हो, जहाँ पर खुद हयात ऊपर आ रही हो, उसके जिक्र पे अब जितना उसके करीब होते चले जाएंगे उतना हयाते बिलाई और ईमानी मिलती चले जाएंगे। हमेशा। और भाई ये सांस लेने वाली जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, नाराज ना होना, ये जाहिरी जिंदगी तो हैवान भी जी रहे हैं। हमारी अजमत क्या है बाबा? इंसान हैवान से बरतर तब होगा जब हयात साहिबुल ज़मान से लेगा। बात समझ रही है ना मेरी? वरना तो हैवान भी सांस ले रहे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी जीते हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं। अगर हमारी वैसी जिंदगी है तो हमारी विलाई जिंदगी का फायदा क्या है? मौलाई जिंदगी का फायदा क्या है? इंतहाई तवज्जो। अच्छा, एक मार्फत की बात सुनाता हूँ। अली सुनो, मोहतरम भाई, मेरे इंतहाई मोहतरम खोसा भाई, बड़ी तवज्जो, इंतहाई बात। ये आपने सुना हुआ है ना कि अंबिया, चलो यूँ सवाल करता हूँ, अंबिया में से कौन से नबी हैं जो जिंदा हैं? शाबाश, एक ठीक बताया। एक और भी जिंदा है? हाँ जी ना, एक हजरत हिज्र, एक हजरत ईसा। गौर ही नहीं फरमाया। ये जिंदा है ना, फर्क इतना है, हजरत ईसा चौथे आसमान पे जिंदा है, हजरत हिज्र इसी जमीन पर जिंदा है। अब सुन लिया है आपने, अब मार्फत लेते हो, मार्फत लेते हो। हजरत ईसा कहाँ पर है? बोलो। चौथे आसमान पर जिंदा है। ये कुरान कहता है हजरत की मौत नहीं है, हजरत ईसा की मौत, वो चौथे आसमान पर जिंदा है। ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? और जमीन पर कौन है? हजरत हिज्र। अब मार्फत ले जाओ, मुझे पता नहीं है कौन सा बंदा कितनी परवाज करेगा। एक नबी चौथे आसमान पे जिंदा, वो भी मेरे मौला का इंतजार कर रहा है।
एक ज़मीन पे जिंदा, वो भी मेरे मौला का इंतज़ार कर रहा है। एक मिनट, हाथ बेशक बुलंद रहे, जुमला मार्फत वाला है। वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। वो चौथे आसमान पर इंतज़ार कर रहा है कि वो आए तो उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ूं। खिज़र हर रोज़ सुबह की नमाज मेरे मौला के कदमों में सर रख के पढ़ रहा है। वो वहां इंतजार कर रहा है, ये यहां पर इंतजार कर रहा है। अच्छा, मैं हजरत खिज़र का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूं। हजरत खिज़र का तारुफ क्या है? आप सारे जानते हैं कि हजरत खिज़र की हवाओं पर ड्यूटी है, ठीक कह रहा हूं ना, दरियाओं पर, बादलों पर। यानी हजरत खिज़र हवा, बादल, बारिश, समंदर का बहाव, दरियाओं का बहाव, जो कुछ भी है, ये हजरत खिज़र इन पर ड्यूटी है, रखते हैं और विलायत रखते हैं। ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, ये आपके जहन में भी आ गया इस अंदाज में, या किसी लफ्ज़ों में पहले भी आपने सुना हुआ है हजरत खिज़र के बारे में, ऐसी बातें कहीं पर पढ़ी हुई होंगी। ठीक कह रहा हूँ ना? कोई मैंने नई बात तो नहीं की? नहीं बोलो, ये समाज तक पहुंचा हुआ है ना बेटे, ये आप जानते हैं ना। हाँ तो बोलो ना, कहो हाँ हम जानते हैं। नहीं जानते फिर भी कह दो नहीं जानते, मैं कह दूंगा, लेकिन बात आम है। मैं बच्चा था, हम सुने हुए थे, पढ़ी बाद में, गौर में बरबा रहे। हाँ हम बच्चे थे, ये सुनते थे, फिर पढ़ा बाद में है। आपने भी समाज फरमाया होगा ना, बात में ठीक कर रहा हूँ कि ये ऐसा करता है। एक बात आराम से करता हूँ, आप आसमान तक पहुंचे। खिज़र नबी की पानी, हवा, बादल पर विलायत हो तो ये खाली नहीं बनता। जो खिज़र नबी का भी इमाम है, उसकी विलायत हो तो वो कैसे खाली बन जाता है? बोलो यार। नहीं, मौला नबी की बात करो, ठीक है, अंबिया की बात करो, चुप है, कोई बात नहीं है। उन नबियों के इमाम की बात करो। अब समझ आया है या नहीं? मेरा साहिबुज़ ज़मान आदम से लेकर तवज्जो, इरफान, मारिफत और ईमान ले जाओ। मेरा साहिबुज़ ज़मान हजरत आदम से लेकर ईसा नबी तक इन अंबिया का भी इमाम है। और इतनी इंतजार आप नहीं कर रहे जितने आदम इंतजार कर रहे हैं, नूह इंतजार कर रहे हैं, इब्राहिम इंतजार कर रहे हैं, मूसा और ईसा खिज़र इंतजार कर रहे हैं। वही तो मौला के वाकई मुंतज़िर है। मौला को नूर मार्फत फरमाए, इरफान मौला पहुंच रहा है। ओ बाबा, मेरा मौला वलीयुल्लाहिल आज़म है। ओए होए हो, अब मैं इस जुमले की तरफ देर हो जाएगी, फिर आता हूँ, इसको पूरा कुछ। हजरत खिज़र की ड्यूटी ये है, हजरत खिज़र का काम ये है। अच्छा, अब वो जिंदा है। अब ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी, मुझे बताना कि हजरत खिज़र अभी तक जिंदा हैं। आप तो बोलेंगे ना, बताएंगे ना मुझे कैसे खिज़र जिंदा है। तो कहते हैं अरे भाई क्यों जिंदा है? तो कहते हैं आबे हयात पी कर जिंदा। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जिसे सारे मुसलमान मानते हैं। पहली बात भी कि जनाब खिज़र की ड्यूटी है पानियों पर, हवाओं पर, वो भी, ये बात भी सारे मुसलमान मानते हैं। हम हूँ या दूसरे भाई सुन्नी हो, सारे मानते हैं कि वो क्या करते हैं जनाब, आबे हयात पिया हुआ है। तो बच्चा था ना, मैं सुनता था तो दिल में आता था यार ये आबे हयात हम भी ढूंढे, हम भी पिए। मैं अपने जवान आज़ादार मातमी मवालियों को हिम्मत दिलवाना चाहता हूँ, पीछे न रहा करो। मौला के सदक़े में वहाँ भी इंसान पहुँच जाता है जिस दस्तरखान पे अल्लाह के औलिया खाते पीते हैं। ओए
بھائی توجہ کرو, اس طرح بننے کی کوشش کریں گے تو کچھ بنیں گے. زمین پر اپنے آپ کو نہ رکھو, کچھ اوپر چلو. آپ کے قدم زمین پر ہونے چاہیے, در حقیقت فرشتے آ کر آپ کے پاؤں تلے اپنے پر بچھانے لگتا ہے. تو یہ اس طرح کی معرفت اور ہمت سے ہوگا. انتہائی توجہ. تو دل میں آیا کہ یہ آب حیات ڈھونڈو تو صحیح ہے کہاں. بھئی وہ آب حیات پیتا ہے, وہ چشمہ حیات کہاں ہے. اب جو مولا نے توفیق دی نا, تو پڑھتے گئے تو اس منزل میں پہنچا. بس اس وقت سے مست ہوں اور مست ولا اور عرفان مولا ہوں, اس کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر آپ کے دلوں تک اس بات کو پہنچا دیا, مجلس میری آج کی پوری ہو گئی. کہ وہ آب حیات کہاں پر ہے جہاں سے حضرت خضر پی کر جی رہے ہیں, اس طرح جی رہے ہیں کہ اب موت نہیں ہے, اب حیات ہی حیات ہے, اب زندگی ہی زندگی ہے. وہ جی رہا ہے. وہ آب حیات کہاں سے پیتا ہے, وہ جام حیات کہاں سے پیتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے صاحب الزمان پورا دن جہاں پر بھی تشریف رکھے, صبح کی نماز کربلا میں میرا صاحب الزمان پڑھتا ہے. انتہائی توجہ کیجیے گا اور توجہ کیجیے گا. اور حضرت خضر علیہ السلام کون ہے, یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مولا وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. دوسری طرف ہے حضرت خضر, یہ جو ان کی ڈیوٹی ہے پانی پر, بارش پر, ہواؤں پر, جو کچھ بھی کرتے ہیں. توحید سنا رہا ہوں قبلہ, میری بات کو سننا بڑی بڑی توجہ سے. یہ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے, اللہ کے امر سے کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں. حضرت خضر جو بھی کرتے ہیں, کس کے کیا کرتے ہیں بیٹے, حضرت اللہ کے امر سے کرتے ہیں. یہ تو سارے مانتے ہو نا. اب اللہ کسی کو امر ڈائریکٹ دیتا ہے. بس کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے تمہارے پہنچنے کی اور میرے بھی پہنچانے کی. توجہ کر, وہ ڈائریکٹ دیتا ہے تو سب کہو گے نہیں, اس نے قرآن میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو ایک اس نے اولو الامر بنایا ہے. اللہ اولو الامر کے پاس امر بھیجتا ہے, اور وہ اولو الامر آگے جس کی جہاں پر ڈیوٹی ہو اللہ کا امر پہنچاتا ہے. اب پرواز کرو, خضر جہاں بھی جا رہا ہو, میرے وقت کے اولو الامر امام زمان کے قدموں میں آتا. اچھا, یہ اس سطح کی مجالس تو آپ سنا کرتے ہیں, دل تو آپ کے مان رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ چہرے حیران نظر آتے ہیں. حیرانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ بھائی میں دیکھو ایسے الف بے کی طرح آپ تک بات کو پہنچاتا ہوں, بالکل آسان کر کے, بالکل آسان کر کے آپ تک پہنچا. یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اللہ نے آج تک کسی کو ڈائریکٹ حکم دیا ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے. تو اس نے اولو الامر بنایا ہی یہی ہے کہ اس کو اپنا امر دیتا ہے, وہ آگے امر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولو الامر کی اطاعت کرو, کیونکہ وہ تم تک میرا امر پہنچاتا ہے. تو وہ اولو الامر جیسے تمہارا ہے, جس پر اس کی امامت ہے اس کا بھی اولو الامر ہے, خضر کا بھی امام ہے اس کا بھی اولو الامر ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات پہنچ گئی ہے نا. اب سنیے گا, اب مجھے یہاں پر چشمہ حیات نظر آیا, آب حیات جو جناب حضرت خضر پی کر زندہ ہو رہے ہیں, زندہ باقی ہے. تو میرا مولا صاحب الزمان صبح کی نماز کربلا میں فرات کے کنارے تجدید وضو کر کے ادا کرتے ہیں. خضر مشرق میں ہو تب بھی آ جاتا ہے, مغرب میں ہو تب بھی آ جاتا ہے, شمال جنوب جہاں پر بھی ہو میرے مولا کے قدموں میں آ جاتا ہے. سر میرے مولا کے قدموں میں رکھتا ہے, سجدہ اللہ کو کرتا ہے, آب حیات پی کر زندہ رہ رہا.
एक नारा मैं लगवाता हूं, लगाओ अपने साहिब उस जमान का। मैं कहूंगा या साहिब उस जमान, आप कहें अल अजल अल अजल, ठीक है? पूरे जोर से, कोई बंदा पीछे न रहे इस नारे पर। या साहिब उस जमान, हाथ बुलंद करो, या साहिब उस जमान। आखिर वालों, या साहिब उस जमान। अभी कुछ रह गए हो, या साहिब उस जमान, या साहिब उस जमान। मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए, साहिब उस जमान का साया आप पर रह जाए। बाबा अपने इमाम को समझो, बस जब वो चश्मे हयात है, मेराज है अल्लाह की कसम मारिफत की। मेरा दिल चाहता है इतनी परवाज करूं कि जनाब जिब्रील भी आ करता थे। मुझे देखना, मेरा मौला चश्मे हयात है। लोग ये शक करते हैं कि पता नहीं लुकमा अल्लाह की तरफ से इमाम देता है या नहीं। मैं ये कहता हूं, ये जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से मौला तकसीम कर रहे हैं। जिंदा हो गए तो खाओगे, सांस आएगी तो खाएगा। जब सांस उसकी तरफ से है, लुकमा तुझे तेरा अब्बा देता है। अब पहुंच गई बात। इस तरह की विलायत सुनोगे तो अबू दर सलमान जैसे बनोगे, वरना पीछे रह जाएंगे। हाँ, करबलाई बनने के लिए ये इरफान लाजिम है, करबलाई बनने के लिए ये पाकीज़गी लाजिम है। इंसान पाक ही वही होता है जितना मौला की विलायत का नूर उसके दिल में उजागर होता है। और मजलिस में यही कुछ कर रहा हूँ। ऐ नल हयात, उस जिंदगी का चश्मा मौला मेरा सलाम, ऐ जिंदगी का चश्मा मौला मेरा सलाम। तो वो जब ऐनुल हयात है, चश्मा हयात है, पता नहीं कबलत वक्त नहीं होगा। एक मार्फत का जीना रिवायत सामने आ रही है, मौला कोई दिल में इज़्न अता फरमा, मैं हदिया करूं या ना करूं। ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चाह रहा था किसी और तरफ चला जाऊं। एक आप सलवात पढ़ें, जिधर मूड हो गया मैं बात शुरू कर दूंगा। सलवात बुलंद आवाज़। मौला का इरफान होगा तो जिंदगी भी आलिमाना, मौत भी आलिमाना। और अगर मौला का इरफान नहीं होगा, जिंदगी भी जाहिलाना, मौत भी जाहिलाना। दुनिया में भी जाहिल, आखिरत में भी जाहिल, मौत के वक्त भी जाहिल। तो जाहिल का ठिकाना जन्नत नहीं है, जहन्नुम है। अल्लाह जाहिलों को जन्नत नहीं भेजता। इसलिए तो कह रहा हूं, इस बच्चे से लेकर आखिर तक जितने हो, जो भी ये विलायत और इमामत का इरफान रखता है, बरोज़े क़यामत आलिम बन के मशहूर होगा, आलिम बन के मशहूर होगा। आओ इस इमाम को ज़्यादा याद किया करो और इस इमाम का ज़्यादा इंतज़ार किया करो। बस इस दूसरे मरहले पे मैं आ गया हूँ, नज़दीक पहुँच गया हूँ। इसका इंतज़ार किया करो। जितना इंतज़ार करोगे उतना मौला के करीब हो जाओगे। क्यों? पता ही इसका कौन कौन इंतज़ार कर रहा है। ओए होए 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 होए, कसम बखुदा जितने अंबिया हैं मेरे मौला का इंतज़ार कर रहे हैं। जो कब्रों में सोए हुए हैं वो भी मौला का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने औलिया और अंबिया हैं वो मेरे मौला का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं लगेगी ना? दिल तुम्हारे को बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए। बड़े विला वाले लोग हो। मेरा मौला वो मुंतज़र है। मुंतज़र ज़ोए के ऊपर ज़बर हो तो इसका माना होता है जिसका इंतज़ार किया जाए। मुंतज़िर ज़ेर लगी हुई हो तो वो होता है जो इंतज़ार करने वाला है। आप और हम कौन है? मुंतज़िर, इंतज़ार करने वाले। मेरा मौला कौन है? जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मौला के इंतज़ार करने वालों की लिस्ट बनाओ ना, मखलूकीन में से कोई भी नहीं बचेगा जो उसका इंतज़ार कर रहा। ज़मीन को देखो तो वो इंतज़ार में है, कब मेरा मौला ज़ुहूर फरमाएगा।
आसमान इंतजार कर रहा है कब मेरा मौला ज़हूर फरमाएगा। परिंद चरिंद हैवानात हवाएं तमाम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ज़हूर फरमाएगा। कुछ कहना चाहता हूँ, कसम बखुदा खातमुल मुरसलीन इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ज़हूर, अली मुर्तदा इंतजार कर रहे हैं कि कब ज़हूर फरमाएगा, सैयदा इंतजार फरमा रही है कि कब ज़हूर फरमाएगा, अस्करी तक सब इंतजार कर रहे हैं। लुत्फ लेना, मेरा मौला ऐसा मुंतज़र है कि खुद भी इंतजार कर रहा है कि मेरा कब ज़हूर, खुद भी इंतजार फरमा रहा है कि मेरा कब 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 ज़हूर होगा। और आखिरी मंजिल तक आपको ले आया हूँ, बहुत तवज्जो, मखलूक जो भी आए वो नूरी हो या खाकी सब उसकी इंतजार कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन भी उसका इंतजार कर रहा है। ये अब बात भारी लगी है, मैंने हालांकि कहा पहले ही मैं कह देता, अक्सर मैं पहले कह देता हूँ कि अल्लाह मुंतज़िर है। आपको इतना आशना नहीं था, मैंने तमहीद शुरू की कि यहाँ तक पहुँच जाओ। घबरा तो नहीं गए हो? दिल की तख्ती पर लिखो या कलम और कागज़ निकालो, एड्रेस दे रहा हूँ। कुरान मजीद सूरह यूनुस आयत नंबर 20, इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं फंताज़िरू, तुम इंतज़ार करो, इन्नी मैं अल्लाह माअकुम तुम्हारे साथ मिनल मुनतज़िरीन इंतज़ार करने वालों में से। हाथ उठे जो कुरान को मानता है, जो कुरान को मानता है वो तो हाथ उठे ना। ओए बेटे, इस फकीर की ज़बान से बात तो ऐसे निकलती ही नहीं है। वो भी अल्लाह कह रहे हैं भाई तवज्जो करो, इंतहाई तवज्जो करो। बहुत सारे काम हैं जो मखलूक के साथ खालिक अंजाम देते हैं। एक को तुम बड़ा जानते हो, बताओ यार, एक काम है जो मखलूक के साथ अल्लाह भी अंजाम देते हैं। कौन सा काम? सलवात। शाबाश शाबाश। ठीक है, अच्छा, अल्लाह सलवात भेजे कोई हरज नहीं। जिन पर अल्लाह सलवात भेज रहा है अल्लाह उनका इंतज़ार करे, परेशान हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आज मैं आपको बताता हूँ, कुरान में 3 काम है जिसको अल्लाह फरमाता है तुम भी अंजाम दो, मैं भी अंजाम देता हूँ। 2 सुन चुके हो। एक कहता है तुम सलवात पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ सलवात पढ़ता हूँ। किस पर? नबी पर और उसकी आल पर। और दूसरा फरमाता है तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। तीसरा फरमाता है मेरे और मेरे नबी और उसकी आल के दुश्मनों पर लानत करो, मैं अल्लाह भी उन पे लानत करता हूँ। अली हक मौला नूर मार्फत अता फरमाए, मौला नूर विलायत और अता फरमाए। जो चाहते हो फिर नारा लगाना, फिर अली मौला, फिर मौला आपको नूर मार्फत अता फरमाए। बस ये अल्लाह अंजाम देता है और हमें भी हुक्म फरमाता है, तो परेशान ना हुआ करो। मुझे देखना, मार्फत तौहीद दे रहा हूँ। हम काम अंजाम देंगे अपने जैसा, वो काम अंजाम देगा अपने जैसा। क्या बात है,
کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے سننا اس جملے کو. ہم کام کریں گے اپنی حد تک کیونکہ محدود ہے، وہ کام کرے گا بے حد کیونکہ لامحدود ہے. بابا صلوات میں ہم دعا مانگتے ہیں، وہ تو کسی سے مانگ کر نہیں دیتا، خود دیتا. بھئی توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہم انتظار کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ عالم اور علیم ہو کر بھی انتظار کر رہا. کیا بات ہے تمہاری. جتنے موالی جوان بیٹھے ہو دل سے دعائیں دے رہا ہوں جنہوں نے جملہ لیا ہے. توجہ کرو، وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، ہر صفت میں لیسا کمثلہ شیء ہے. ہم انجام دیں گے، ہم جیسا یہ بھی انجام دے گا، وہ بھی انجام دے گا، لاکھوں کروڑوں انجام دیں گے. لیسا کمثلہ شیء ہے، جیسا وہ انتظار کر رہا ہے کوئی انتظار نہیں کر رہا. اب میرا ساتھ دینا، آخر تک بولنا. جیسی صلوات وہ بھیج رہا ہے ایسی کوئی صلوات نہیں بھیج رہا، تو پھر مان جاؤ جیسی لعنت وہ بھیجتا ہے کوئی نہیں بھیجتا. سارے وہ ہے جس کا نبی انتظار کر رہے ہیں، ولی انتظار کر رہے ہیں، خاتم المرسلین انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک کی قسم خود اسلام جس کا انتظار کر رہا ہے. واہ 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 واہ. اور جس کی شریعت جس کا انتظار کر رہی ہو، خود قرآن صامت اسے ناطق سمجھ کر انتظار کر رہا ہے. کیا بات ہے. ہم سینکڑوں روایات ہیں جن میں فرمایا گیا افضل، پاک نبی فرما رہے ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. فرماتے ہیں میری امت کے برتر اعمال میں سے ہے حجت کی انتظار کرنا. اس کے انتظار کرنا، اس کے انتظار کرنا. گزارش کر رہا ہوں، صبح کرو اسی کے نام سے، شام کرو اسی کے نام پر. سید ابن طاووس علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں تمام مجتہدین فرماتے ہیں انہوں نے امام کو نیند میں نہیں ایسے زیارت کی ہے. وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے لیکن اس انداز بتاتے تمام متفق ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مولا کو صبح یاد کرنے کا انداز کیا ہے اور شام کو یاد کرنے کا انداز کیا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کیسے انتظار کریں؟ فرماتے ہیں صبح کرو نا، آنکھ کھلے تو منہ سے نکلے یا صاحب الزمان. اچھا یہ کیوں کہو؟ تم کہتے ہو نا کہ جو تمہیں کچھ دے اس کا شکریہ ادا کرو. شاباش شاباش. لطف لوگے، تمہیں کچھ پانی کا گلاس پلائے نا، وہ پانی کا گلاس تمہیں پلائے تو شریف اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. نیند ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں، سفید ریش والے ماتمی، نیند ہوتی ہے موت کی بہن، جو نیند سے ہمیں بیدار کر کے اللہ زندگی دے رہا ہے. دے تو چشمہ حیات سے رہا ہے نا.
हाय 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 हाय। पानी का गिलास पिलाने वाले का शुक्रिया अदा करता है, तुझे सांस बख्शने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करता। इसका शुक्रिया अदा करो। या साहिब ज़मान, यही उसका शुक्रिया है। और कहो मौला चल रहा हूं तेरे सहारे। क्यों ना तेरे सहारे चलूं, तेरे सहारे पे आसमान बाकी है, तेरे सहारे पे जमीन बाकी है, तेरे सहारे पे दरिया चल रहे हैं, हवाएं चल रहे हैं। मौला सब कुछ तेरे सहारे पे है, मैं भी तुझे तेरे हाथ में दे रहा हूं। अब जाओ काम करो, जाओ काम करो, ऑफिस जाओ, तिजारत पर जाओ, दुकान पर जाओ, मजदूरी करने के लिए जाओ, जो काम भी करो। बच्चे मेरे कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, जहां पर भी जाओ, हाथ काम में हो, दिल मौला के लिए धड़क रहा। ओए कि मौला अगर अभी ज़रूर फरमाएगा ना, मैं तेरे कदमों में पहुंच जाऊंगा। ये तुम्हारी जिंदगी नूरानी बन जाएगी, फिर तुम चश्मा हयात से जिंदगी ले रहे हो। मैं बहुत सारे चेहरे रोते हुए देख रहा हूँ, क्या बात है, यही मैं चाहता था और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। जो देखते हैं कि मेरी सांस मेरा मौला मुझे दे रहा है, उसका इंतज़ार करो यार। सुबह इस तरह करो, शाम कैसे? फरमाते जब शाम हुई सोने से पहले वुज़ू करो। आज से ये अमल याद कर लो, सोने से पहले वुज़ू करो। छठे इमाम फरमाते हैं जो वुज़ू करके सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वज्जल फरमाते, जो वुज़ू करके, मुझे देखना, वुज़ू करके बिस्तर पे सोता है ना, वो नींद में होता है। मुझे देखना, वो नींद में होता है, पूरी रात उसकी इबादत लिखी जाएगी। गौर ही नहीं कर रहे यार। आले मोहम्मद के फरमान पर अमल तो करो, वो तुम्हारी नींद को भी मुसल्ला इबादत बना दे। वुज़ू करके सोया करो, वुज़ू करके सोया करो। 3 काम वुज़ू करके किया करो, कम अज़ कम। सोए करो वुज़ू करके, खाना खाया करो वुज़ू करके। गौर ही नहीं फरमा रहे। मजलिस सुना करो वुज़ू करके। गौर ही नहीं फरमा रहे। मजलिस आपकी ज़िंदगी नूरानी हो जाएगी, पाक हो जाएगी, तैयब हो जाएगी, ताहिर हो जाएगी। सैयद इब्न ताऊस फरमाते रात को जो आया है ना, अब दिन अपने के जितने आमाल हैं, अच्छे आमाल, उनको ज़हन में इकट्ठा करके बारगाह साहिब-उज़-ज़मान में पेश कर। कहो मौला मैं नाकिस हूँ, कोशिश बड़ी की है, कुछ ना कुछ इसमें रह गया है। यार मेरी तरफ किसी इधर उधर ना देखो, आप कोई तवज्जो इधर उधर ना जाए। मौला मैं नाकिस हूँ, मेरे अमाल नाकिस हैं, लेकिन जो कुछ किया है तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ये उस आरिफ, उस फ़कीह, उस मुज्तहिद का जुमला है। सैयद इब्न ताऊस फरमाते हैं तुम अपनी नाकिस आमाल भी मौला को दोगे ना, और कहोगे मौला अब तू जान तेरा अल्लाह जाने, तो साहिब-उज़-ज़मान कामिल करके बारगाह खुदा में पहुँचाए। आओ इस मौला को भी याद न करें, इसका भी इंतज़ार न करें। एक और जाविया और इसी के ऊपर मजलिस खत्म, मसाइब शुरू है, इसी में मसाइब है, इंतहाई तवज्जो। उसका इंतज़ार किया करो कि वो जल्दी आए। क्यों? वो आएगा तो करबला के मजलूमों का इंतकाम लेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपसे यही तवक्को थी यार। मैं जुमला कहता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा बंदा नहीं बोलता। वो आए नहीं, इंतकाम न ले। किस जुर्म ने आपने अली की बड़ी इज्जत वाली बेटियों को बाजारों में ले आए हो, जंगलों में ले आए हो, बेपालान पर सवार किया है। जैसे मातम तुमने किया है फिर मातम करो। कैसे हम इंतज़ार न करें, वो आए, उस 4 साल की बच्ची का इंतकाम ले, जिसे बाप के लाशे पे भी कातिल मारता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे। आओ उसका इंतज़ार करें। बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास जिसकी इंतज़ार है। पता है क्यों इंतज़ार में है? इसमें मार्फत भी है, रोने के मेराज है। अगर आपने ले लिया, तवज्जो की, तो हर बंदा रोएगा। मौला अब्बास बाबुल हवाइज इंतज़ार में है। क्यों? अब्बास मौला गाजी रो रो कर कह रहे हैं साहिब-उज़-ज़मान तेरा ज़हूर जल्दी हो जाए,
मैं तो चुप करके मारा गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मातम करो सारे बंदे। मैंने ये मजलूमियत मौला गाजी को दी। क्या तुम्हारे हाय के ऊपर कुर्बान जाऊँ, तुम्हारे रोने ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ यार, क्या बात है तुम्हारी। फिर कह देता हूँ, वो इस इंतज़ार में है मौला मैं तो हाथ मसलता रह गया। मैं तो इसी इंतज़ार में हाथ मसलता शहीद हो गया कि आप आएंगे तो मिलकर इंतकाम लेंगे। मेरा मौला अब्बास इंतजार फरमा रहे हैं, 12वां ज़ुहूर फरमाएगा, करबला वाले सारे आएंगे। अब फिर मेरा मौला गाजी जर्नैल होगा, अब फिर इन जालिमों से इंतकाम लेगा और एक एक से पूछेगा तुमने कैसे असगर पे पानी बन गया और तुमने कैसे हुसैन पे पानी बन गया। अजरुकुमुल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। तैयार हो गए हो? आज बारगाह में अलमदार करबला का अलम बरामद होना है। मौला आप तमाम को इस अलम का साए में ज़िंदगी अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर मोमिन बच्चे जवान बुजुर्ग मेरी माएँ बहनें हैं, तुम्हें मौला गाजी के अलम के साए में दुश्मनों से महफूज रहकर ज़िंदगी गुजारते रहो। उसके तो बाजू कट गए, क़यामत तक आने वाले मातमी को अमान दे गया। फरमाता है मेरे बाजू नहीं थे जो तुम मेरा अलम उठाते हो ना। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं तो कटे हुए बाजू वाले का अलम उठाते हो। मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन नहीं गिरने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम में से हर बंदा बावफा है। जो मेरे मौला का अलम उठाता है वही बावफा है, जो अदादार है वही बावफा है। तुम ही गयूर हो, तुम ही अजीम हो, तुम अदादार मुखलिस मोमिनों की मैं पाँव की खाक हूँ। जिसके लिए गाजी की अम्मा भी तुम्हें दुआ कर रही है। बाबुल हवाइज के मसाइब है, आपने हाजतें अपने जहन में रख बैठो, लेकिन हर हाजत के सामने मौला के ज़ुहूर की दुआ, अपने मौला के ज़ुहूर किया। आपकी दुआएं पीछे हूँ, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। बस मैं शुरू कर रहा हूँ, अब मैं यहीं से मसाइब शुरू कर रहा हूँ। करबला के मैदान में खुसूसी तौर पर 34 साल का कड़ियल जवान था। 34, क्या बात है तुम्हारी, 34 साल का कड़ियल जवान था। लेकिन करबला, मदीने से लेकर करबला तक जब भी तलवार पे हाथ रखता था हुसैन फरमाते थे चुप। शुजात अली मौला रखता था, लेकिन बर्दाश्त करता हुआ आया। करीब जब मदीने से चलने लगे ना, कदम चूम के कहता है मौला ले जा हमें अली की बेटियों को घर में रहने दे। हुसैन ने फरमाया अब्बास इसके बगैर हमारा मिशन कामिल नहीं होता। चुप करके चल पड़ा। करबला में खैमे लगने लगे, लगाने लगा, रो रो कर कहता यही था, कहाँ जंगल कहाँ ज़ैनब। करता या करता, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। एक फ़कीह है अहले बैत, रोते रहो इसी तरह जिस तरह रो रहे हो, रोना नसीब हो। एक फ़कीह है अहले बैत का निचोड़ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। सैयद अबुल कासिम खोई रहमतुल्लाह अलैह, फ़ुक़हा उस्तादों के, फ़ुक़हा के भी उस्ताद हैं बड़े बड़े। इनसे नक़ल है कि जब भी करबला में मज़ार मौला अब्बास पे आते थे, 2 सलाम करते थे और ये रोता रोता फ़कीह मुज्तहिद बेहोश हो जाते थे। कौन सा मातमी अज़ादार है जो मातम नहीं करेगा? सैयद सुनोगे,
ऐसे रोते हुए मौला की मज़ार के सामने खड़े होकर पहला जुमला कहते थे, अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ऐ हुसैन की जवानी अब्बास मेरा सलाम। इससे बुलंद हाय निकले तो दूसरा सलाम, मातम वाला हो तो दूसरे जुमले पे तो सैयद गिर कर बेहोश हो जाता था, रोते थे, फिर कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ओ ज़ैनब का पर्दा अब्बास हमारा सलाम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। अब जब मौला गाजी ने, आपको पता है शहजादा अली असगर से पहले मौला अब्बास गए हैं, तमाम हाशमियों के बाद गए हैं। जब हाशमियों में से कोई नहीं रहा, अकबर नहीं रहा, कासिम के टुकड़े हो गए। ओ हसन का दुल्हा यतीम जब पाश पाश हो गया, जब कोई मेहमान बाकी ना रहा, कोई हाशमी बाकी ना रहा, और मौला ने एक मक्तल का जुमला सुना रहा हूं, मक्तल की रिवायत, उम्मीद है आप सब गिरिया करेंगे, उसके ऊपर मातम करेंगे। मौला ने क्या देखा कि इजाजत मांगने आए। एक माहौल सुनो, खयाम की हालत क्या थी, खयाम की हालत क्या थी। मुमताज से बड़ी तवज्जो कर, ये ऐसे देखें, ऐसे चारों तरफ यूं खैमे थे, बीबियों के, हाशमियों के, असहाब तो जुदा थे, खैमे थे। दरमियान में एक खैमा था जिसमें पानी के मशकीज़े रखे जाते थे कि जो जिस अपने खैमे से निकले ना, पानी उसके करीब हो, पानी उसके नज़दीक हो। अब सुनो, 10वीं वाले दिन इस वक्त मौला गाजी ने ये मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास की शिद्दत से बिलख रहे हैं, खैमों से बड़े आहिस्ता आहिस्ता नहीफ होने की वजह से चल नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मशक वाले खैमे में आते हैं, मशकीज़ा उठाते हैं, पानी नहीं होता, उस मशकीज़े के ऊपर अपने आप को गिरा देते हैं। एक मर्तबा यही मंजर गाजी ने देखा, सकीना आ रही है, मातम करो सारे बंदे। बच्ची आकर इस खैमे में आई, एक एक मशकीज़ा उठा दिया है, देख कर कहती है चचा गाजी पानी, ओ चचा मेरा असगर मरदा है, ओ चचा पानी लेके आ जा। अजरकुम अल्लाह, आवाज़ें बुलंद करो, आज कोई शर्म का वक्त नहीं है। कहो है प्यास, है अब्बास, है सकीना, है असगर। अब कहा मुझे इजाजत दो, जुमला का मैं आते हुए ऐसे आ रहा था ना, मक्तल की एक किताब को मैंने देखा खुद अपने रोने के लिए, हजारों बार पढ़ा हुआ है, फिर जुमला सामने आया, मैं रोया आपके लिए सुना रहा हूं। ऐसे आकर कहते हैं मौला, मौला मुझे इजाजत दे, मैं मैदान जाता हूं। फरमाते या अब्बास अंता अलमी, ओ अब्बास तू मेरा खुद परचम है। थोड़े बंदों ने जुमला सुना है, अलमदार आपने सुना हुआ है। हुसैन ने फरमाया अलमदार तो तू है ही सही, तू मेरा अलम है, और तुझे देखकर दुश्मन डर जाता है, तुझे देखकर मेरी ज़ैनब का दिल भर जाता है, दुश्मन देख के डरता है, सकीना देख के अच्छा सांस लेती है, तू मेरा खुद अलम है, मुझे इजाजत दे। फरमाया पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। घोड़े पर सवार हुए। कसम बखुदा हर शहीद का विदा मुश्किल है, और जितना विदा मुश्किल अब्बास का है ना,
मौला हुसैन के बाद इससे बड़ा विदा हमें नहीं मिलता। क्यों? जब अब्बास जा रहे थे अकबर नहीं रहे थे, जब अब्बास जा रहे थे कोई जवान बाकी नहीं था, एक 22 साल का बीमार सजाद था। जब गाजी जाने लगे ना, करीब आकर कहता है चचा मुझे मैदान जाने दे, मुझे मैदान जाने दे, तेरी वर्दी मैं पहनता हूँ, तू यही रह जा। अब्बास सर चूम के कहता है सज्जाद मुझसे ज़ैनब का नंगा सर नहीं देखा जाता, तू जान अली की बेटियां जाने। आया अब्बास, मुश्किल मैं नहीं सुना। अच्छा एक मंजर सुन लो, मंजर सुन लो। और रोने के लिए आए हो ना, किसी चीज का ख्याल ना करो। एक मंजर इसी के ऊपर खत्म करने लगा हूं। इस एक मंजर, मौला अब्बास चले खैमों में, मंजर सुने, 2 मंजर। 80 बच्चे कतार में, खाली जाम हाथ में, आगे सकीना है, तमाम को कह रही है दुआ करो चचा पानी लाएगा, पहले तुम्हें दूंगी, मैं असगर को नहीं दूंगी। बच्चे इंतजार में, गाजी आ रहा है। 64 मस्तूरात की सरों पे चादरें, आगे बीबी ज़ैनब आलिया, सबको कह रही है न घबराओ अभी हमारा गाजी जिंदा। ये खैमों का हाल जहन में रखना। टीले के ऊपर हुसैन है, टीले के ऊपर हुसैन है, कमर पे हाथ है, गाजी को देख रहे हैं। मेरे मौला अब्बास मैदान में गए, पानी भरा, वापस आ रहे हैं। मौला हुसैन की निगाह मौला अब्बास पर। दरवाजे पर बीबी फिजा खड़ी है, फिजा देख रही है मौला हुसैन को। खैमे के अंदर बीबी ज़ैनब, ज़ैनब के पीछे बीबियाँ, खैमे के अंदर सकीना, सकीना के पीछे बच्चे, बीबी सकीना की निगाह फिजा पर, बीबी ज़ैनब की निगाह फिजा पर, फिजा की निगाह टीले पर हुसैन पर, हुसैन की निगाह अब्बास पर। जालिम ने दाया बाजू कलम किया, अलम गिरा, हुसैन मनवीन पर गिरे, फिजा दरवाजे पर गिरी, बीबियां खैमे में गिरी, बच्चों के हाथ से प्याले आवाज आई। बच्चे कहते थे अल-आताश, है प्यास। बीबियां कहती थी वाह हिजाबा, अब ले आओ अलम, अलम की भी जियारत करो, मेरा जुमला भी सुनते चले जाओ और रोते भी चले जाओ, ये अलम आ रहा है। मैं उठ सुनते रहो मेरा जुमला, मैं जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। अलम को देखो,